Good morning to all. Welcome back once again in your computer class. So the program for today is your palindrome number using recursion. So read out the question here. A class palindrome has been defined to check whether a positive number is a palindrome number or not. We need to take a positive number and we have to check whether it is palindrome or not. The number n is a palindrome if the original number and its reverse are same. If both of the numbers are same, then it is said to be a palindrome number. So now the data members are your num and reverse num. Num will store the original number, reverse num will store the reverse of the number, and both the numbers are of which type? Integer type. So here you take it as integer, right? Next step, member methods or member functions. First one is your palindrome. Now check it here. This is the name is palin. Make it correct. Palin. Okay, so this is your constructor here for palindrome number to initialize the data member with legal initial values. So legal initial values से इसको initialize करना है, यानी कि num is equal to 0 and reverse num is equal to 0. Fine. Then next step is whatever instructions I am giving, just do it hand to hand. Leave the space for the question and start writing the program. For the question, you can do one thing, you can take the screenshot so that later on you can write it. Let me zoom this one. Take the screenshot for this. Fine, now start it. Second function is void accept. Accept function is used to accept the numbers, that means to input the numbers. So in this one, what you have to do is, it depends whether you are making using a scanner or input stream reader. So suppose we are making using input stream reader, so upside, that means before the class we have to import the package java.io. Then in the accept, right here throws io exception, opening bracket. Now take the line here, write the line input stream reader, buffer reader, SOPLN, enter a positive number. No need to apply a condition here. ठीक है, only give in the message कि enter a positive number. No need to check whether the number is positive or not. Then number is stored in num, so write it num is equal to integer dot parseInt and in dot read line. Then bracket close. This is your second function. Moving on to next, reverse. Now reverse function is taking one integer type of argument and returning some integer type of value. Integer function is taking an integer type of argument and returning integer type of value here. It reverses the parameterized argument y and store it in reverse num using recursion technique. रिकर्शन टेक्निक से क्या करना है, आपको इसको स्टोर करना है रिवर्स नम में. फाइन. देन void check. Check whether the number is palindrome by invoking the function reverse and display the result with an appropriate message. Got my point? That means this reverse function you will call here, and then you will check whether the answer of this one, whatever will get returned, if it is equal to this check, then it is a palindrome, otherwise not. Fine. Now let me tell you this one. Here I am going to do what? I am taking a local argument for this function that is going to store the reverse of a number. So I am going to take a reverse, a local argument rev, and initialize it to 0, suppose. Or you can do this initialization task in the constructor as well. But I am taking a local argument and inside the class also you can declare it directly. Initialize it. ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक रिवर्स लिया, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी वाई आई हैव टेकन दिस एक्स्ट्रा वेरिएबल हेयर.
नाउ इनसाइड दिस रिवर्स आपको क्या करना है, देखिए वी हैव टू मेक अ बेस केस एंड अ रिकर्सिव केस. सो इफ़ दिस वन यू राइट फर्स्ट, पहले ये लिख दो कि ना इंट रिवर्स इंट वाई. उसके बाद में आपको क्या करना है, इफ़ नाउ नंबर इज स्टोर्ड इन वाई. सो इफ़ वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर y की वैल्यू ग्रेटर होती है ज़ीरो से, तो रिवर्स निकालने का लॉजिक क्या होता है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर. नाउ व्हाट इज आर, रिमाइंडर. सो आई एम राइटिंग द सेम स्टेटमेंट, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस y mod 10. दैट इज द सेम स्टेटमेंट, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर. ये हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, वी विल कॉल द फंक्शन अगेन. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, रिवर्स. फंक्शन का नेम है रिवर्स एंड द न्यू वैल्यू विल बी what should be the new value, y divided by 10. means if initially my number is suppose 363 है ना, तो पहली बार में जो नंबर होगा दैट विल बी 363. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई यूज़ द लास्ट डिजिट 3, सो माई नंबर शुड गेट रिड्यूस. दैट मीन्स द लास्ट जो डिजिट है दैट शुड गेट रिमूव्ड एंड द नंबर शुड बी कन्वर्टेड इनटू 36, है ना. 36 बन जाना चाहिए. तो 363 को अगर 36 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड. तो हेयर आई एम डूइंग द सेम थिंग, रिवर्स में y डिवाइड बाई 10, तो नंबर कितना हो गया, 36 हो गया. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर दीजिए क्लोज एंड मेक द एल्स पार्ट. सो इफ़ y इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो वी आर परफॉर्मिंग दिस टास्क. एल्स अदरवाइज, और अगर y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है, तो जैसे अगर आपने नंबर ज़ीरो लिया है, ठीक है, तो हमें उस केस में क्या करना है, निगेटिव नंबर हमें निगेटिव नंबर के लिए वी नीड नॉट टू कंसिडर, बिकॉज हमने मैसेज इनपुट कराया था ना कि एंटर अ पॉजिटिव नंबर. तो हम ज़ीरो से लेकर ज़ीरो ऑनवर्ड्स आई कैन टेक एनी नंबर. ठीक है, सो आई एम एज्यूमिंग दैट आई विल नॉट टेक एनी निगेटिव नंबर. ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि हम कोई निगेटिव नंबर इनपुट नहीं करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन. सो इफ़ माई वैल्यू रीचेस टू ज़ीरो, ग्रेटर देन तक तो ये वर्क करता रहेगा कंटिन्यूसली. जैसे ही मेरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो मुझे क्या करा देना है, मुझे कराना है रिटर्न. किसको रिटर्न कराना है, रिवर्स को. सो आई विल राइट हेयर रिटर्न रिवर्स. देन क्लोजिंग ऑफ दिस एल्स पार्ट. फाइन, बट वन मोर स्टेटमेंट यू नीड टू अपेंड इट हेयर. एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज योर रिटर्न. आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ एल्स पार्ट you have to write return REV. why it is so, इफ़ और एल्स के बाहर आपने रिटर्न रिवर्स लगाया और फिर फंक्शन को करोगे क्लोज, बिकॉज रिवर्स फंक्शन सेज व्हाट कि जो डेटा टाइप है, रिवर्स का जो डेटा टाइप है, रिटर्न डेटा टाइप, दैट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप. बट लुक एट हियर, इन दीज टू स्टेटमेंट्स आई हैव नॉट यूज्ड एनी रिटर्न कीवर्ड. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू. लेकिन इफ़ स्टेटमेंट में हम वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी ना. इफ़ में नहीं करा रहे हो तो इफ़ के बाहर रिटर्न करानी पड़ेगी. एल्स में तो देखो आई एम यूजिंग रिटर्न, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम. बट इफ़ के बाहर और एल्स के बाहर आकर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न रिवर्स. इफ़ यू विल नॉट राइट दिस स्टेटमेंट रिटर्न रिवर्स, सो इट विल गिव यू द कंपाइल टाइम एरर. ठीक है, कि आपसे जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू और आप कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हो. गॉट माई पॉइंट. इसलिए रिटर्न कराना दोनों स्टेटमेंट में कंपलसरी है, मतलब दोनों पार्ट में, इफ़ पार्ट में और एल्स पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कराना पड़ेगा. ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस. पॉज द वीडियो and write this one. Fine. Now let us look here how it will work. Now suppose my number is 863. My number is 863. It's a positive number. Now it will pass into reverse. Reverse में pass हो गया. I am writing it with R. Okay. Now this is the value of y. रिवर्स जब कॉल करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 863.
Now when you will call this and it will check if y is greater than 0, क्या 863 is greater than 0? yes. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू, अब रिवर्स इज अ क्लास वेरिएबल, एक क्लास में वेरिएबल लिया था जिसकी इनिशियल वैल्यू थी 0, तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, मतलब 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 कितना हो गया 0, 0 प्लस वाई मॉड 10, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 3, कैसे, वाई मॉड 10 यानी कि 863 मॉड 10. If you are not getting my instructions, please write it somewhere in your copy that 0 reverse equal to reverse into 10 का मतलब हो गया 0 into 10 प्लस उसी के आगे लिखा हुआ था ना सॉल्यूशन में y mod 10, तो y की वैल्यू कितनी है 863, तो 863 mod 10 कितना देगा 3, तो यानी कि 0 प्लस 3 कितना हो गया 3, यानी कि रिवर्स विल स्टोर 3, इनिशियली 3 स्टोर हो गया. देन यू आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन अगेन बाई राइटिंग द स्टेटमेंट y डिवाइड बाई 10, तो y डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 863 को डिवाइड करोगे 10 से कितना मिलेगा 86, तो राइट इट हेयर 86. नाउ अगेन द वैल्यू गॉट चेंज्ड, तो इनिशियल द न्यू वैल्यू ऑफ y इज नाउ 86. सो इफ 86 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो यानी कि रिवर्स की अपडेटेड वैल्यू कितनी है 3, सो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस दैट रिमाइंडर पार्ट, तो 30 प्लस रिमाइंडर पार्ट कितना हो जाएगा 6, वाई मॉड 10 लिखा था ना, तो 86 मॉड 10 करो कितना मिलेगा 86 मॉड 10, कॉपी में लिखिए 86 मॉड 10 विल बी 6, तो इसका मतलब कितना हो गया 30 प्लस 6 विल बी 36, तो नाउ योर न्यू नंबर विल बी 36. फाइन. देन अगेन योर फंक्शन विल बी कॉल्ड फॉर द न्यू नंबर ऑफ 8, 86 डिवाइड बाई 10 हो गया, 8 वैल्यू हो गई 8. नाउ 8 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से सेम प्रोसेस करना है, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 8 हो जाएगा ना, रिवर्स इंटू 10 यानी कि 36 इंटू 10 कितना हो गया 36 इंटू 10 360, 360 प्लस आर, 360 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 360 सॉरी 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 कितना हो गया, मतलब 360 प्लस 8 विल बी 368, यहाँ पे देखो 360 प्लस 8 विल बी 368, यानी कि हमारी रिवर्स की वैल्यू आ गई 368. ठीक है. देन लेटर ऑन योर न्यू नंबर विल बी, यू विल पास अगेन, नाउ 8 डिवाइड बाई 0, 8 डिवाइड बाई 10, 8 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 0 पॉइंट, यानी कि कितना हो जाएगा 0, सो योर नाउ न्यू नंबर विल बिकम 0. अब जैसे ही वैल्यू 0 होगी और ये चेक होगा कि y इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या कराना शुरू कर देगा रिटर्न, तो रिटर्न जो है वो सम कराना शुरू करेगा. अब देखिए एक्चुअली जब आपने रिटर्न सम जो लास्ट में लिखा था ना रिटर्न सम, डू यू रिमेंबर दैट रिटर्न सम, तो रिटर्न सम ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक बार तो रिटर्न करेगा, एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, बट जितनी बार आपने फंक्शन कॉल किया था उतनी बार रिटर्न करेगा द वैल्यू ऑफ सम. मतलब आपने जब लिखा था इफ़, लुक एट हियर केयरफुली, यू हैव रिटन इफ़, फिर आपने कुछ यहाँ लिखा था, देन यू हैव रिटन एल्स, then you return some statement, but irrespective of this if and else I have written one statement that was your return sum. So whether your if block executed, whether your else block executed, it doesn't matter, लेकिन वो जो लास्ट में हमने रिटर्न सम लिखा था वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा कि नहीं होगा, वो तो एग्जीक्यूट होना ही है, हर केस में होगा, तो सम की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होनी शुरू हो जाएगी. अब सम की एक्चुअली कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, सम की अपडेटेड वैल्यू रिटर्न होगी. क्यों, क्योंकि सम एक सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि सम जो है एक मेमोरी में बना हुआ है ऐसे, तो सम की जो अपडेटेड वैल्यू होगी, क्योंकि सम एक ही बार में एक ही तो वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो सम की जो अपडेटेड वैल्यू आई थी, नॉट सम एक्चुअली इट वाज योर रिवर्स, सॉरी नॉट सम, रिटर्न हमने रिवर्स लिखा था है ना, तो रिवर्स जो होगा वो हमारा क्या कंटेन करेगा, जो आपका लास्ट वाला यानी कि जो आपका अपडेटेड वाली वैल्यू थी यानी कि 368. ठीक है, तो जब रिटर्न सम होगा यहाँ से ऊपर जाएगा इसके पास सम की वैल्यू, क्योंकि लोकेशन एक ही है मेमोरी के अंदर, तो वो यहाँ से जब रिटर्न कराएगा तो किसको रिटर्न कराएगा 368 को. ठीक है, फिर यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगी तो भी क्या रिटर्न होगी 368,
यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगी सो दैट विल ऑल्सो बी व्हाट 368, क्योंकि वैल्यू सम के अंदर अब चेंज हो चुकी है, फाइनल वैल्यू सम थी, क्योंकि हम देखो इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, हमने लिखा था ना कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10+, तो रिवर्स इज इक्वल टू का मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो रिवर्स में मतलब फाइनल वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड वैल्यू यूज़ करोगे वो फाइनल वैल्यू बन जा रही है जो भी अपडेटेड आ रही है। इसीलिए जब 368 फाइनल अपडेटेड वैल्यू बनेगी तो वो हमारी क्या होगी, सिर्फ वही वैल्यू होगी जो बार बार क्या होती रहेगी, अपसाइड पे रिटर्न होती रहेगी। ये इसका रीज़न है। ऐसा नहीं है कि पहले वो 368 रिटर्न करेगा, फिर 36 रिटर्न करेगा, फिर 3 रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरीके से वो आपका यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर देगा 368। गॉट माई पॉइंट? क्यों ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट लिखा था रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10+ y mod 10। तो अब यहाँ देखो ज़रा, जो भी हमने चेंजेस किए हैं, ये जो चेंजेस हमने किए हैं एक्चुअली ये फाइनल चेंजेस हैं, तो रिवर्स की जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी ना वही क्या होगी आपकी सेंड हो जाएगी। ठीक है, देन द लास्ट वन इज void checks whether the number is palindrome or not by calling the reverse function। अब रिवर्स को कॉल करना है ना, तो रिवर्स को कॉल करोगे इस फंक्शन के अंदर, आप बनाओगे void check, make it here void check and then call the function name is reverse and pass the number here num and final after देखो reverse num के लिए क्या था rev num, तो यहाँ पे स्टोर करा लो रिवर्स नंबर। अब ये फाइनल रिवर्स नंबर को कंटेन कर रहा है और हमें क्या चेक करना है कि इफ़ माई रिवर्स नम इज इक्वल टू माई नम देन SOP palindrome else SOP not palindrome, then function close। Clear to all the students, I hope? If still any doubt is there, then you can ask in your live class, and tomorrow there will be the live class, tomorrow onwards। फाइन। सो यहाँ पे जो भी रिवर्स से आपका रिटर्न हो रहा है, जो आप REV को रिटर्न कर रहे थे ना, यहाँ से REV को रिटर्न किया था फंक्शन से, वो किस में आ जाएगा, रिवर्स नम में। रिवर्स नम हमने वेरिएबल लिया है टू स्टोर द रिवर्स ऑफ द नंबर, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है रिवर्स नम। सो ये हमने रिवर्स नम में स्टोर करा के एंड फाइनली उसको चेक कर लिया। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट प्रोग्राम इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।